السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں امینہ زاہد۔ امریکہ کی دھمکیوں پر ایرانی مسلح افواج کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری کا سخت رد عمل سامنے آ گیا۔ ایرانی مسلح افواج کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے کہا کہ ایرانی قوم اور مسلح افواج اپنے ملک پر حملہ کرنے والوں کے پاؤں کاٹ دیں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایران نے کبھی دشمن کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے ٹرمپ کی باتوں کو مضحکہ خیز قرار دیا اور کہا کہ ایرانی قوم کے دشمنوں کے لیے ابنائے ہرمز نہیں کھولا جائے گا۔ یاد رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی کو ابنائے ہرمز کھولنے سے مشروط کر دیا، دھمکی دی کہ جب تک ابنائے ہرمز نہیں کھلتی تب تک ہم ایران کو مکمل تباہ کر دیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ نے اسموگ پر قابو پانے کی حکومت کو سنجیدہ اقدامات کی ہدایت کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموگ تدارک کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت ہوئی، جس میں مختلف سرکاری محکموں نے اپنی رپورٹس عدالت میں پیش کیں، جبکہ پی ایچ اے نے درختوں کی ٹرانسپلانٹیشن سے متعلق قواعد عدالت میں پیش کر دیے۔ لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ جوڈیشنل واٹر کمشنر رولز کا جائزہ لے کر ضروری ترامیم کرے۔ جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ غیر مقامی درخت لاہور کے ماحول کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ سارے سال کا اسموگ ایک ماہ میں آ جاتا ہے اور سارے سال کی محنت ایک ماہ میں ضائع ہو جاتی ہے۔ عدالت نے اسموگ پر قابو پانے کے لیے حکومت کو سنجیدہ اقدامات کی ہدایت کی اور آئندہ سماعت پر سرکاری محکموں سے عمل درآمد رپورٹس طلب کر لیں۔ آئی پی ایل غیر ملکی لیگز کے کرکٹ میچز پر جوا لگانے والے 2 بکیز گرفتار۔ جوہر ٹاؤن پولیس کی کارروائی۔ ملزمان نے آئی پی ایل کے جاری کرکٹ میچز پر جوا لگایا تھا۔ ملزمان کے قبضے سے 2 موبائل فونز، 6 لیپ ٹاپ، ہزاروں روپے سے زائد رقم برآمد کر لی گئی۔ ملزمان انٹرنیشنل کرکٹ ورلڈ کپ میچز میں بھی جوا لگاتے تھے۔ ملزمان مختلف موبائل ایپ اکاؤنٹ کے ذریعے گروپ میں جوا کرواتے تھے۔ گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج، مزید تفتیش جاری ہے۔ ایس پی صدر رانا حسین طاہر نے ایس ایچ او جوہر ٹاؤن محسن شہزاد اور پولیس ٹیم کو کامیاب کارروائی پر شاباش دی۔ ڈیرہ غازی خان کے مختلف علاقوں سخی سرور کوہ سلمان میں موسلادھار بارش سے فصلوں کو شدید نقصان پہنچا۔ شہر پانی میں ڈوب گیا، دکانداروں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ موسلادھار بارش کی وجہ سے کوہ سلمان کی ندی نالوں میں طغیانی، مٹھاون ندی، سخی سرور، سانگڑ اور سوری میں سیلاب کے امکانات ہیں۔ محکمہ موسمیات نے 1 اپریل سے 4 اپریل تک پنجاب کے مختلف علاقوں میں اٹک، راولپنڈی، چکوال، جہلم، سرگودا، میاں والی، فیصل آباد، جھنگ اور ٹوبہ ٹیک سنگھ میں بارشوں کی پیشن گوئی کر دی۔ خوشاب، نورپور تھل، لیا، گجرات، گجرانوالہ، حافظ آباد، منڈی بہاولدین میں بھی بارش کے امکانات۔ لیسکو نادرن سرکل کی اٹاری سب ڈویژن میں کولڈ اسٹور فیکٹری سے بجلی چوری کرنے کی بڑی واردات بے نقاب ہو گئی۔ چیف ایگزیکٹو لیسکو انجینئر محمد رمضان کی زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت کارروائی عمل میں لائی گئی۔ ایسی نادرن سرکل محمد مزمل کی سربراہی میں لیسکو ٹیم نے بھرپور کارروائی کی۔ ایکسین کوٹ عبد المالک اور ایس ڈی او اٹاری نے ایم این ٹی ٹیم کے ہمراہ مؤثر کارروائی کی۔ میٹر کا سافٹ ویئر بریچ کر کے 2022 سے 2025 تک سلو کیا گیا تھا، جس سے لیسکو کو 1 کروڑ 35 لاکھ روپوں کا نقصان پہنچایا گیا۔ ملزمان کو 2,98,000 یونٹ کا ڈیٹیکشن بل جاری کر کے ایف آئی آر درج کر لی گئی۔ لیسکو نے ٹرانسفارمر، تمام کیبلز اور میٹر تحویل میں لے لیے۔ چیف ایگزیکٹو لیسکو کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ بجلی چوری کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے وی این کے تحت کچی و ہستخال گلیوں میں ترقیاتی کاموں کا جائزہ۔ ڈپٹی کمشنر لاہور نے تحصیل واگا میں لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کے کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ چیف آفیسر ایم سی ایل، اسسٹنٹ کمشنر واگا اور متعلقہ محکموں کے افسران ڈی سی لاہور کے ہمراہ موجود تھے۔ ڈی سی لاہور نے جلور ریلوے لائن کے ساتھ والے علاقوں میں کاموں کا جائزہ لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر واگا نے ترقیاتی اسکیموں اور ڈرین کے مسائل پر بریفنگ دی۔ توسیعی کام میں علاقے کا ڈرین کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ منصوبوں کے معیار، شفافیت اور بروقت تکمیل کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ تمام ترقیاتی اسکیمیں مقررہ مدت میں اعلیٰ معیار کے ساتھ مکمل کی جائیں۔ ڈرین کے مسئلے کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے۔ کام کے دوران حفاظتی اقدامات کو اپنایا جائے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ علی اعجاز کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ معیار، شفافیت اور بروقت تکمیل پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ عوامی منصوبوں کو نقصان پہنچانے والے عناصر سے آہنی ہاتھوں نمٹا جائے گا۔ ینگسن آباد میں مسیحی برادری نے کم عمر شادی پر پابندی اور دیگر مطالبات کے لیے احتجاجی ریلی نکالی۔ ریلی میں مسیحی رہنماؤں رنجیت لال، مظہر صادق، عاشر جان، پادری آفتاب نذیر سمیت مسیحی مرد و خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے مذہب کی جبری تبدیلی اور کم عمر کی شادی پر پابندی سمیت دیگر مطالبات کے حق میں نعرے بازی کی۔ اس
موقع پر گفتگو کرتے ہوئے مسیحی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ قائد اعظم کے پاکستان میں سبھی اقلیتوں کو مساوی حقوق حاصل ہے۔ پاکستان میں تمام مذاہب کے ماننے والوں کو مذہبی آزادی حاصل ہے۔ وہ اپنے تہوار مکمل آزادی کے ساتھ مناتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں کچھ عرصے سے مذہب کی جبری تبدیلی اور کم عمری کی شادی پر پابندی کی خلاف ورزی کے واقعات افسوسناک ہیں۔ بالخصوص مسیحی بچی ماریا کی کم عمری کی شادی کے معاملے پر ایک عدالتی فیصلے پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ مظاہرین نے حکومت سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو جہلم ثانیہ صافی نے سیلاب میں استعمال ہونے والے آلات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب سے پہلے بھرپور تیاری بہت ضروری ہے تاکہ بر وقت لوگوں کی جان و مال کو بچایا جا سکے۔ انجینئر فرحان مرزا ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ریسکیو 1122 جہلم کی آفت یا سیلاب سے نمٹنے کے لیے مکمل تیاری ہے۔ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی پنجاب کی ہدایت پر ریسکیو 1122 سینٹرل اسٹیشن جہلم پر سیلاب میں استعمال ہونے والے آلات اور سامان کی انسپیکشن اور ٹیسٹنگ کروائی گئی، جس کی نگرانی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ثانیہ صافی نے کی، جبکہ تحصیل ریسکیو اسٹیشن پنڈ داد خان میں بھی سیلاب میں استعمال ہونے والے آلات کی انسپیکشن اسسٹنٹ کمشنر پنڈ داد خان عائشہ شفقت نے کی۔ میونسپل کارپوریشن جہلم دینا سواہا آلات کی انسپیکشن بھی کی گئی۔ انجینئر فرحان مرزا ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ریسکیو 1122 نے سیلاب میں استعمال ہونے والے آلات کے متعلق بریفنگ دی۔ سیلابی صورتحال میں لوگوں کو ریسکیو کرنے کے حوالے سے فلڈ سیکٹرز کی تشکیل، ریسکیو کی سیلاب زدہ علاقوں میں تعیناتی، ہنگامی حالات میں لوگوں کو انخلا کے متعلق اقدامات کا بتایا گیا۔ انہوں نے ضلعی انتظامیہ کی طرف سے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ مصطفی آباد کے نجی اسکول میں سالانہ رزلٹ کے حوالے سے شاندار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ پوزیشن ہولڈر طلباء کو سرٹیفکیٹ میڈل سے نوازا گیا۔ تقریب میں والدین و معززین علاقہ نے خصوصی شرکت کی۔ پرنسپل افتخار حسین اور اساتذہ نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ بہترین رزلٹ اساتذہ کی محنت کا نتیجہ ہے۔ ہم والدین سے اپیل کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو سرکاری اور معیاری اسکول میں داخل کروائیں، جہاں پر بہترین سہولیات اور پڑھا لکھا اسٹاف بچوں کی بہترین مستقبل کے لیے کوشاں ہیں۔ آپ ہمیں بچے دیں، ان کا مستقبل سنوارنا ہماری ذمہ داری ہے۔ منشن آباد میں اسسٹنٹ کمشنر آفس کی سرکاری زمین پر تنازع شدت اختیار کر گیا۔ معاملہ حل کرنے کے دوران وکلاء اور ریونیو ڈپارٹمنٹ کے اہلکار آمنے سامنے آ گئے۔ تصادم کے نتیجے میں ریونیو عملے کے چند افراد زخمی ہو گئے۔ واقعے کے بعد صورتحال کشیدہ، قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مداخلت کر کے حالات کو قابو میں کر لیا۔ ذرائع کے مطابق متعدد وکلاء کے خلاف دہشت گردی کی دفعات مقدمہ درج، قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ معاملے کی شفاف تحقیقات کی جا رہی ہے۔ ذمہ داران کا تعین قانون کے مطابق ہوگا۔ ضلع انتظامیہ نے فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے اور مسئلہ بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی اپیل کر دی۔ منشن آباد بار ایسوسی ایشن کی جانب سے پنجاب بھر میں ہڑتال کی کال دے دی گئی۔ لیا میں عید الفطر کے موقع پر صفائی کے بہترین انتظامات کرنے والے DWMC افسران میں اعزازی شیلڈ اور اسناد تقسیم کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر آصف علی نے تقریب کے دوران ریجنل مینیجر مدثر جاوید، ڈسٹرکٹ مینیجر خوشحال خان بزدار اور تحصیل مینیجر میں شیلڈ اور اسناد تقسیم کی۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل شبیر احمد بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر ستھرا پنجاب مہم کے تحت صفائی کے نظام کو مزید بہتر بنایا جا رہا ہے۔ ہم اکٹھے ہیں، ستھرا پنجاب کی ہماری جو ڈسٹرکٹ لیا کی ٹیم ہے، مینجمنٹ کو، وینڈر سائڈ کو، ان کو اپریشیٹ کیا ہے، ان کے تحصیل مینیجرز کو سرٹیفکیٹس دیے ہیں، شیلڈز دی ہیں۔ عید الفطر کے موقع پہ صفائی کے انتظامات بڑے شاندار تھے۔ اوورآل صفائی، گلی محلے کی صفائی، مساجد کی، عیدگاہوں کی، پارکس کی، تو الحمدللہ ہماری اس ٹیم نے بڑی شاندار پرفارمنس دی۔ اور آج کے دن میسج یہی ہے کہ اسی پیس کو ہم کنٹینیو رکھیں گے، اور ضلع لیا میں یہ جو ٹیم بڑی شاندار طریقے سے کام کر رہی ہے، اسی پیس کو آگے لے کے چلیں گے۔ اور ڈسٹرکٹ لیا کی خاص طور پہ یہ جو 2 تحصیلز ہیں جس میں ابھی ڈائیو ویسٹ مینجمنٹ کام کر رہی ہے، اس کے ہر ٹاؤن کی حد تک، ہر محلے کی حد تک، ہر گاؤں کی حد تک یہ ٹیم پہنچے گی اور صفائی ستھرائی کو انشور کرے گی۔ جو تیسری ہماری تحصیل ہے چوبارہ، وہ ہماری ایک دوسری کمپنی ہے اس کے ساتھ ہے، وہاں بھی انشاءاللہ ایک سیریمنی کریں گے، ان کے ورکرز کو، مینجمنٹ کو بھی اپریشیٹ کریں گے۔ اور اوورآل ڈسٹرکٹ لیا جو ہے، یہاں ستھرا پنجاب کی ٹیم یہ صفائی ستھرائی کے حوالے سے، ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے، پارکس کے حوالے سے، عوامی جگہوں کے حوالے سے اپنا پورا رول پلے کریں گے، اور ضلعی انتظامیہ اور یہ ساتھ شانہ بشانہ چلیں گے۔
तहसील मुजफ्फरगढ़ के मरकज खानगढ़ में आम की काश्तकारों के लिए अहम आगाही सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसमें माहिरीन ज़राअत ने काश्तकारों को जदीद तरीक़ा काश्त और बीमारियों से बचाव के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। सेमिनार में असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत मुजफ्फरगढ़ मोहम्मद अफजल कुरैशी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और आम के बागात की बेहतर देखभाल पर तफसीली रोशनी डाली। उन्होंने मैंगो हॉपर की शिनाख्त, इसके नुकसानात और मौसर तदारक के तरीकों से काश्तकारों को आगाह किया, जबकि आम के बागात को मुतासिर करने वाली बीमारियों जैसे पाउडरी, मेल्ड्यू, मुंसड़ी और दीगर फंगल और बैक्टीरियल अमराज पर भी तफसीली गुफ्तगू की। काश्तकारों को इन बीमारियों के कंट्रोल के मौसर अद्वियात और इनके दुरुस्त इस्तेमाल के तरीक़ाकार से भी आगाह किया गया। चनियोट के शहरी मुज़र सेहत गोश्त खाने से बच गए 100 किलो मुर्दा जानवर का गोश्त तल्फ, मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। डीजी फूड अथॉरिटी के हुक्म पर फूड सेफ्टी टीम की पेंसरा रोड पर कार्रवाई। मौका पर वेटरनरी स्पेशलिस्ट ने गोश्त का तफसीली मुआयना किया। तल्फ करदा गोश्त इंसानी इस्तेमाल के लिए इंतहाई मुसर करार दिया गया। मुलजिम नाकस गोश्त को फरोख्त करने की गर्ज से ले जा रहे थे। पंजाब फूड अथॉरिटी की बरवक्त कार्रवाई से नाकस गोश्त की सप्लाई को नाकाम बना दिया गया। जालसाज माफिया मुनाफा के लालच में खुराक नहीं बीमारी फरोख्त कर रहे हैं। तर्जमान फूड अथॉरिटी का कहना है कि शहरी गोश्त समेत बुनियादी अशिया की खरीद से कबल जांच पड़ताल करें। वज़ीर पंजाब के हुक्म पर मियारी खुराक की यकीनी फराहमी के लिए मुसलसल चेकिंग जारी है। खुशाब में देरीना दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। मलक अवैस की कोशिशों से दो ग्रोहों के दरमियान सुलह हो गई। जिला खुशाब में सियासी और समाजी शख्सियत मलक अवैस की काविशों से दो बासर खानदानों के दरमियान जारी देरीना दुश्मनी दोस्ती में बदल गई, जिस पर अहले इलाका ने इत्मीनान और खुशी का इजहार किया। कोट अब्बास 338 HR के करीब दो तेज रफ्तार मोटरसाइकिलों के दरमियान खौफनाक तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की टीम ने फौरी जाए वक़ुआ पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयों का आगाज कर दिया। नौलखा से अगवा होने वाली 6 साला मासूम बच्ची बाहिफाजत वालिदैन के सुपुर्द कर दी गई। DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान रजा ने बच्ची के अगवा का नोटिस लिया। SP इन्वेस्टिगेशन सिटी की सरबराही में बच्ची की बाजियाबी के लिए टीम तश्कील दी गई थी। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन नौलखा मुर्तजा बिलाल ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करके बच्ची को बाजियाब करवाया। बच्ची के अगवा का मुकदमा इसके वालिद ने थाना नौलखा में दर्ज करवाया था। मुलजिम बच्ची को अगवा करके जिनाह अस्पताल छोड़कर फरार हो गया। जदीद टेक्नोलॉजी समेत ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से बच्ची को बाजियाब करवाया। DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रजा का इस हवाले से कहना है कि बच्चों के अगवा में मुलविस अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। कानून शिकन अनासिर से आहनी हाथों निपटा जाएगा। SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद की तरफ से पुलिस टीम के लिए तारीफी असनाद का ऐलान किया गया। सूबाई वज़ीर बराए हाउसिंग बिलाल यासीन ने हल्के में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह किया। पंजाब में अवामी फलाही मनसूबों और मुस्तफ़ीद अफराद की तादाद में वाज़े इजाफा हो गया। खित्ते में जंग के असरात हमसाया ममालिक पर भी असरअंदाज हो रहे हैं। हुकूमत ने अपने अखराजात में कमी करके आवाम पर दबाव डालने से गुरेज किया। वज़ीर आला पंजाब ने हुकूमती वज़रा और मशीनरी की सहूलियात को ख़त्म कर दिया। सियासी मुखालफिन ने लॉकडाउन पर सियासत चमकाने की तैयारी कर रखी है। पंजाब के हर कोने से तरक्याती कामों की जाल बिछाए जा रहे हैं। वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन का इस हवाले से कहना है कि आम आदमी के रोज़मर्रा के मसाइल का हल वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अवलीन तरजीह है। दिन दहाड़े डेंगी वर्कर्स के साथ गन पॉइंट पर डकैती की वारदात। काहना चौकी हल्लों की पुलिस ने 2 रुकनी डकैत ग्रुप को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारियां जदीद टेक्नोलॉजी और CCTV फुटेज की मदद से की गई। मुलजमान ने चंद रोज कबल डिफेंस B थाने के इलाके में डेंगी वर्कर्स से गन पॉइंट पर वारदात की। CCTV फुटेज में मुलजिम को वर्कर्स से गन पॉइंट पर वारदात करते देखा जा सकता है। मुलजमान ने गुज़िश्ता रोज मुहाफिज टाउन में गन पॉइंट पर 2 तालिब इल्मों से मोबाइल फ़ोन छीने थे। मुलजमान ने 2 रोज़ कबल एक ही दिन में डकैती की लगातार 3 वारदातें की। मुलजमान के कब्जे से छीने गए मोबाइल फ़ोन, सरकारी लैपटॉप और पिस्तौल बरामद कर ली गई। गिरफ्तार ग्रुप से वारदातों में इस्तेमाल होने वाली चोरी शुदा मोटरसाइकिलें भी बरामद कर ली गई। SP मॉल टाउन जहां अकरम का इस हवाले से कहना है कि मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मज़ीद तफ्तीश जारी है। SP सिटी की सरबराही में मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। बादामी बाग पुलिस की कार्रवाई, हजारों मालियत मंशियात की तहसील नाकाम बना दी गई। पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए 2 मुलजमान को गिरफ्तार किया। मुलजमान के कब्जे से 5 किलो से ज़ायद चरस बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया। SP सिटी बिलाल अहमद का इस हवाले से कहना है कि मंशियात फरोशों के गिर्द घेरा मजीद तंग किया जा रहा है।
डिप्टी कमिश्नर उमरकोट नवीद रहमान लाड़ा की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए सिंध सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी का अहम अजलास मुनक़िद हुआ। अजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर टू इमरान, DHO, DMPPI इंचार्ज नादरा, मुतलका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। अजलास में हुकूमत सिंध और वर्ल्ड बैंक के मुश्तरका तावन से जारी ममता प्रोग्राम के तहत सरगर्मियों का जायजा लिया गया। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन सिंध सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी उमरकोट मैडम खदीजा कुबरा ने प्रोग्राम के मुख्तलिफ पहलुओं पर ब्रीफिंग देते हुए बताया कि ये प्रोग्राम बिलखुसूस हामला खातीन और नौमौलूद बच्चों की सेहत और ग़िज़ायत को बेहतर बनाने के लिए जारी है, जिसके तहत मुस्तहिक़ खातीन को माली मुआवनत और तिब्बी सहूलियात फ्राहम की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रोग्राम के तहत 4790 औरतों की रजिस्ट्रेशन की गई। कुल कंप्लाइंस का टारगेट 83,968 है, जिसमें से 37,129 की कंप्लायंस हुई है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ममता प्रोग्राम के तहत हामला खातून को दी जाने वाली रकम को 30,000 से बढ़ाकर 41,000 कर दिया गया है, जो कि 2 मार्च से बेनिफिशरी को मिलना शुरू हो जाएगी। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ने अजलास से खिताब करते हुए हिदायत की कि प्रोग्राम के तहत मुस्तक़ीन की शफाफ और बरवक्त रजिस्ट्रेशन को यकीनी बनाया जाए और किसी भी किस्म की कोताही या बेज़ाब्तगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। SP डॉल्फिन लेफ्टिनेंट रिटायर अजहर जावेद का मार्च की कारकर्दगी का जायजा। डॉल्फिन और PRU ने एमरजेंसी 15 की 314 कॉल्स पर शहरियों को रेस्क्यू किया। डॉल्फिन ने 88 इश्तारियों समेत 559 आदि मुल्ज़मान, 56 अदालती मफरूरान को गिरफ्तार किया। डॉल्फिन स्क्वाड ने माह मार्च में 14 खतरनाक डकैत गैंग्स को भी गिरफ्तार किया। स्ट्रीट क्राइम में मुलव्वस दीगर 916 मुल्ज़मान को भी गिरफ्तार किया गया। 9 सरबाजों से 1 मोबाइल और 20,000 नकदी बरामद कर ली गई। स्टॉप एंड सर्च के दौरान 7,22,962 वहीकल्स, मोटरसाइकिल, 6,99,850 अशखास को चेक किया गया। डॉल्फिन स्क्वाड ने 8 जाली नंबर प्लेट मोटरसाइकिल व्हीकल के खिलाफ भी कार्रवाई की। डॉल्फिन और PRU वन व्हीलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन में 120 वन व्हीलर्स को गिरफ्तार किया। कम्युनिटी पॉलिसिंग के तहत मुख्तलिफ हेड्स में 137 से ज़्यादा अफराद को रेस्क्यू किया गया। SP डॉल्फिन लेफ्टिनेंट रिटायर अजहर जावेद का इस हवाले से कहना है कि डॉल्फिन स्क्वाड और PRU जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ बरसरे पेकार हैं। IG पंजाब अब्दुल करीम ने पुलिस मुलाजमीन और इनके अहल खाना से मुलाकात की। IG पंजाब ने पुलिस मुलाजमीन फैमिलीज के मसाइल सुने, फौरी रिलीफ के लिए अहकाम जारी किए। शहीद कांस्टेबल मोहम्मद इकबाल की अहलिया के बेटे की ट्रांसफ़र की दरख्वास्त पर एडिशनल IG पंजाब कांस्टेबल्स को ज़ेर गौर लाने की हिदायत की। रिटायर्ड हेड कांस्टेबल मुख्तार हुसैन की कानूनी कार्रवाई की दरख्वास्त पर एडिशनल IG AB को ज़रूरी कार्रवाई की हिदायत की। मरहूम कांस्टेबल मोहम्मद शरीफ की बेवा की पेंशन से मुतालिक दरख्वास्त पर CCPO लाहौर को रिलीफ की हिदायत जारी की। IG पंजाब अब्दुल करीम ने डिसिप्लिन, एडमिन, प्रमोशन, वेलफेयर से मुतल्लिका दरख्वास्तों पर भी अहकाम जारी किए। लाहौर पुलिस की नाजायज़ असला रखने और असला की नुमाइश के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। रवां साल नाजायज़ असला रखने वाले और असला की नुमाइश में मुलविस 1,884 मुल्ज़मान गिरफ्तार किए गए। मुल्ज़मान के खिलाफ शहर के मुख्तलिफ थानों में 1,882 मुकदमात का इंदराज किया गया। गिरफ्तार मुल्ज़मान के कब्जे से 3 क्लाशनकोव, 37 राइफलें बरामद की गई। मुल्ज़मान से 1,684 पिस्टल भी बरामद किए गए। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक के म्याना का इस हवाले से कहना है कि कानून की बालादस्ती यकीनी बनाने के लिए कानून शिकन अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। करोड़ों रुपए की लागत से तौंसा शरीफ में तामीर किया जाने वाला जनरल बस स्टैंड इंतजामिया की नाअहली और अड्डा माफिया की हठधर्मी की वजह से ताहाल फाल ना किया जा सका। आखिर ऐसा क्यों है, देखते हैं सुहेल शहजाद की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, कई साल कबल तौसा शरीफ में करोड़ों रुपयों की लागत से तामीर किया जाने वाला जनरल बस स्टैंड ताहाल फाल नहीं किया जा सका। शहर में मुतादिद गैर कानूनी बस अड्डों की वजह से सरकारी जनरल बस स्टैंड वीरान होने लगा है, जिसका मसरफ गुज़श्ता कई सालों से ईद कुर्बान पर बकरा मंडी का कयाम बनकर रह गया है। तौसा इंतजामिया की नाअहली और अड्डा माफिया की हठधर्मी की बदतरीन मिसाल ये वीरान जनरल बस स्टैंड अपने होने का मातम करता दिखाई देता है। इंतजामिया की नाअहली के सबब यहाँ सहूलियात का तो फुकदान है ही, मगर अड्डा माफिया और इंतजामिया की मिली भगत ने इसे कई सालों से फाल भी नहीं होने दिया। शहर के अंदर से अड्डे तो बाहर निकाल दिए गए हैं, मगर अब भी चंद मकाम पर ताकतवर लोगों ने अपने अड्डे कायम कर रखे हैं। शहरियों ने स्पेशल टेलीविजन न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब तक शहर के अंदर मौजूद ये चंद अड्डे भी बाहर मुंतकिल नहीं किए जाएंगे, तब तक वो नतायज हासिल करना मुमकिन नहीं है जिसके लिए जनरल बस स्टैंड का कयाम अमल में लाया गया था।
दूसरी जानब ताकतवर अड्डा माफिया ने बजाय जनरल बस स्टैंड में कायम करने के इंडस हाईवे पर नए ठिकाने बना लिए हैं, जहां सहूलियात के फुकदान ने मुसाफिरों और शहरियों के लिए शदीद मुश्किलात पैदा कर दी है। ट्रैफिक के बेपनाह हजूम के सबब चौक हाशिम और मगरोठा चौक पर ट्रैफिक जाम रहना मामूल बनकर रह गया है, जबकि तौसा के इंतजामी अफीसरान चैन की बांसुरी बजाय तवज्जो देने के लिए तैयार ही नहीं। यही वजह है कि बेलगाम माफिया इंडस हाईवे पर अपने अपने स्टैंड बनाए जनरल बस स्टैंड जाने को तैयार नहीं। मगरोठा चौक और उसके गिरदो नवाह में माफिया ने अपने बस स्टैंड खोल रखे हैं। इस मौका पर ट्रांसपोर्टर हजरात और शहरियों ने एहतजाज करते हुए कहा कि सेक्रेटरी आरटी या दीगर इंतजामिया शहर की खूबसूरती और शहरियों को सहूलियात की फराहमी बारे सोचने के लिए तैयार ही नहीं। उन्होंने सवाल किया है कि इस माफिया को गैर कानूनी स्टैंड खोलने की इजाजत क्यों दे रखी है। शहरियों ने सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से अपील की है कि करोड़ों रुपयों की लागत से तामीर किया गया जनरल बस स्टैंड फौरी तौर पर फाल किया जाए और शहर में गैर कानूनी अड्डों को सील किया जाए और अरसा दराज से लापरवाही बरतने वाले अफसरान के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि शहर की खूबसूरती और हुकूमती फंड्स के ज़या को रोका जा सके। सियालकोट में डायरेक्टर एफआईए गुजरावाला की सियालकोट सर्कल में खुली कचहरी का इनेकाद। शहरी की शिकायत पर खुली कचहरी में फैसलनामे एहलकार को मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म जारी कर दिया गया। वफाकी तहकीकाती अदारे एफआईए ने रिश्वतखोर सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला किया। डायरेक्टर एफआईए ने कहा कि अवामी शिकायत पर फौरी इंक्वायरी और एफआईआर दर्ज की जाएगी। वफाकी तहकीकाती इदारे ने शहरियों से तावन की अपील की। डायरेक्टर एफआईए ने गैर कानूनी वीजा एजेंटों और एजेंट माफिया के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन का फैसला किया। पासपोर्ट दफातर में शहरियों को हिरासा करने और इजाफी रकम बटोरने वालों के गिरद घेरा तंग किया गया। सोशल मीडिया पर वीजा फ्रॉड करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। बगैर लाइसेंस वीजों के खरीदो फरोख्त संगीन जुर्म है। डायरेक्टर एफआईए का कहना है कि गैर कानूनी कामों में मुलव्वस शख्स किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं। ओकाड़ा में सगे भाई के हाथों दो बहनों के कत्ल का अफसोसनाक वाकया सामने आ गया। ओकाड़ा थाना ए डिवीजन की हदूद शादमान कॉलोनी में सगे भाई ने अपनी दो बहनों पर घरेलू झगड़े की बिना पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में दो बहनें मौका पर ही जा बहक हो गई, जबकि एक बहन को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डीपीओ ओकाड़ा ने वाकये का नोटिस ले लिया। इस्लामाबाद पाकिस्तान पीपल पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर आमद। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा राजा परवेज अशरफ, नैयर बुखारी और चौधरी यासीन मौजूद थे। मौलाना फजलुर रहमान के हमरा मौलाना असद महमूद मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के आसान रसाई विजन के तहत DPO मुजफ्फरगढ़ सैयद गजनफर अली शाह ने शहरियों की आसानी के लिए रिमोट एरिया लोहार वाला इलाका थाना खानगढ़ में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खातून की दरख्वास्त पर थानेदार मुअत्तल इंक्वायरी का हुक्म जारी कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक DPO सैयद गजनफर अली ने शहरियों के मसाइल सुने और इनके हल के लिए मौका पर अहकाम जारी किए। दौरान खुली कचहरी DPO मुजफ्फरगढ़ ने पैसों के तकाजे पर खातून की दरख्वास्त पर ASI को मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। DPO मुजफ्फरगढ़ का इस हवाले से कहना है कि इंसाफ की फराहमी शहरियों की दहलीज पर फ्राहम करने के लिए रिमोट एरिया का इंतखाब किया, ताकि शहरियों को सफ़र करके दफ्तर आने की परेशानी न उठानी पड़े। शहरियों को इंसाफ की फराहमी हमारी अवलीन तरजीह है। खुली कचहरियों का मकसद शहरियों के मसाइल से बराह रास्त आगाह होना है, ताकि शहरियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जा सके। SSP सजावल अली नाराजपर के 7 अहकामात पर सजावल पुलिस की क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। सजावल पुलिस ने कार्रवाई के दौरान एक मुबैना पुलिस मुकाबले में एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक थाना सजावल की हदूद सरवीच नगर के करीब पुलिस और मुसल्लह डाकुओं के दरमियान मुकाबला हुआ, जिसके दौरान दो तरफा फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग के नतीजे में मुलजिम अपने ही साथियों की गोली लगने से हलाक हो गया, जबकि इसके साथ ही फरार होने में कामयाब हो गए। मुलजिम के कब्जे से गैर कानूनी असला और एमुनेशन भी बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को फौरी तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि फरार मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए टारगेट कार्रवाइयाँ जारी हैं। पुलिस का कहना है कि वाक़े का मुकदमा दर्ज करके ज़ाब्ते की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, जबकि गिरफ्तार मुलजमान का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक किया जा रहा है। बल्दिया रेस्ट हाउस हुब के सामने 50 बेड सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में मुबैना मजदूर दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ ऑल यूनिटी ऑफ वर्कर्स के अहदेदारान और मजदूरों ने बल्दिया रेस्ट हाउस के सामने एहतजाजी मुजाहरा कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अली रिंद की इस रिपोर्ट में।
जी बिल्कुल। बल्दिया रेस्ट हाउस हब के सामने 50 बेड सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में मुबैना मजदूर दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ ऑल यूनिटी ऑफ वर्कर्स के ओहदेदारान और मजदूरों ने बल्दिया रेस्ट हाउस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। ऑल यूनिटी ऑफ वर्कर्स के रहनुमाओं खिताब करते हुए कहा कि सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में अद्वियात और इलाज मुआलजे की सहूलियात का शदीद फुकदान है, जिसके बायस मजदूर तबका शदीद मुश्किलात का शिकार है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन के कमिश्नर की जानिब से इजारादारी कायम की गई है, जबकि मजदूरों की कंट्रीब्यूशन की मद में जमा करोड़ों रुपए के इस्तेमाल पर सवालात उठाए। इसके बावजूद मजदूरों को बुनियादी तिब्बी सहूलियात फराहम नहीं की जा रहीं। रहनुमाओं का कहना था कि अगर सोशल सिक्योरिटी अस्पताल हब में मजदूरों को फौरी तौर पर इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम ना की गईं और मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो हब के तमाम मजदूर सड़कों पर निकलने पर मजबूर होंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन के हुक्काम, लेबर सेक्रेटरी और सूबाई वजीर लेबर पर आयद होगी। मुजाहिरीन ने वजीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुकटी समेत मुतल्लका हुक्काम से मुतालबा किया कि 50 बेड सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में मुबैना करोड़ों रुपए की करप्शन की शफ़ाफ तहकीकात कराई जाएं और मजदूरों को फौरी तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएं। रानीपुर पब्लिक हेल्थ में मेगा करप्शन के इंकशाफात, इंजीनियर सदाकत सोहू पर अरबों रुपए की खर्च-बद के इल्जामात, शहरियों ने शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। पब्लिक हेल्थ इंजीनियर सदाकत पर इल्ज़ाम आयद किया गया कि इन्होंने चीफ इंजीनियर बरकत ख्वाजा और महसूस ठेकेदारों के साथ मिली भगत करते हुए अरबों रुपए की तरक्याती फंड्स में बड़े पैमाने पर खर्च-बद की। शहरियों का कहना है कि रानीपुर में मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबे सिर्फ कागजों में मुकम्मल ज़ाहिर किए गए हैं, जबकि ज़मीनी हकीकत इसके बरक्स है। टंडवाला यार शहर समेत जिला के मुख्तलिफ शहरियों देही इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हो गया। बूंदाबांदी के बायस ठेले वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। बारिशों से मुमकिन पैदावार में पैदा होने वाली सूरत हाल के पेश नज़र म्यूनसिपल कमेटी में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। फरोजवाला लबादवाला ज़मीन के तनाज़े पर फायरिंग, दोहरे कत्ल की गवाह खातून कत्ल, मुज़मान गिरफ्तार। बासर अफराद ने घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग करके खातून को कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक 2 साल कबल खातून के वालिद और चचा को बासर अफराद ने गोलियां मारकर कत्ल किया। फायरिंग से 2 भाई कत्ल और खातून शदीद जख्मी हुई। थाना फरोजवाला में 17 अफराद पर नामजद मुकदमा दर्ज हुआ। जाबहक होने वाली खातून की शिनाख्त कर ली गई। PHA पंजाब ने दरख्तों के तहफ़्फ़ुज़ और बागात के मुअस्सर इस्तेमाल के लिए नए इक़दामात मुतारिफ करार दिए, जिनके तहत 30 साल से ज़ायद उम्र या 36 इंच से बड़े तने वाले दरख्तों को विरासती दरख्त करार देकर हुसूसी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा और इन्हें बगैर संगीन वजह के काटने की इजाज़त नहीं होगी, जबकि कटाई से कबल माहिरीन की कमेटी से मंजूरी और मुंतकिली हर मुमकिन कोशिश लाजिम होगी। तरक्याती मंसूबों के लिए आर्बोरिकल्चर इम्पैक्ट असेसमेंट और दरख्तों की कटाई या मुंतकिली के लिए पेशगी NOC सरकारी और निजी दोनों शोबों पर लाजमी करार दी गई है। इसी तरह बागातों, ग्रीन बेल्ट्स में तजावुज़ात के खिलाफ सख्त कवानीन नाफिज किए गए। PHA ट्री ऑफिसर्स की तैनाती और शिकायत के अजाले के लिए निज़ाम कायम करेगा, जिसके तहत 15 दिन में कार्रवाई लाजिम होगी, जबकि खिलाफ वर्जी पर 1 साल कैद, 5 लाख जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल TV।